अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीवीएस जीएस अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस सॉइल्स ऑफ इंडिया या भारत की मिट्टियाँ। इन दिस वीडियो ऑल 8 सॉइल्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिस्कस्ड briefly from examination point of view. So let us start the topic, soils of India. What is soil? Soil is a mixture of rock debris and organic materials which develop on the earth's surface. Rock debris और organic materials का mixture होता है soil. There are some important factors which affect the formation of soil. So what are the major factors affecting the soil formation? They are relief, parent material, climate, vegetation and other life forms and time. Relief means वहाँ का उच्चावच, parent materials means जैसे जो भी यहाँ रॉक वगैरह फॉर्मेशन जो है वो, climate means वहाँ का मौसम, vegetation वहाँ की, other life form means वहाँ जैसे जो animals पाए जाते हैं या organisms जो पाए जाते हैं, and time. Now component of soil. What are the major components of the soil? ये बहुत important factor, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये components of the soil. So there are mainly 4 major components of soil, that are mineral particles, humus, water and air. ये 4 major components हैं soil के. Soil consists of 3 layers that are called horizons. Soil के 3 layers होती हैं mainly, जिनको हम horizons कहते हैं. This arrangement of layers is known as soil profile. और इसी जो horizons का arrangement है उसको हम soil profile कहते हैं. So first is horizon A. Horizon A is the topmost zone और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है. horizon A consists of organic material, mineral matter, nutrient and water. So we can see that all the important constituents which are responsible for plant growth are present in horizon A. इसलिए horizon A बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सभी मिनरल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. So topmost zone consists of organic material, mineral matter, nutrient and water which are necessary for growth of plants. Horizon B, it is transition zone between A and C. ये ट्रांजिशन जोन होता है A और C के बीच के, और इसमें बोथ A और C दोनों के मैटर्स इसमें पाए जाते हैं. Contains matter derived from both A and C. It has some organic matter and mineral matter. Now horizon C. Horizon C is loose parent material. This is the first layer in the soil formation process. Eventually forms the above 2 layers. So आपके horizon C जो है इसमें loose parent materials पाए जाते हैं. And this is the first layer in the soil formation. ये soil formation की सबसे पहली layer है. ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और लोग अक्सर इसमें horizon A मार देते हैं टिक में. जो ऑप्शन दिए हैं उसमें horizon A मार देते हैं, लेकिन horizon C is the first layer in soil formation process. Eventually forms the above 2 layers. और इसी के बाद ऊपर की 2 लेयर फॉर्म होती हैं. Underneath these 3 horizons is the parent rock और bedrock. और इसके नीचे parent rock और bedrock होता है. Classification of soils. ICAR classification of soil based on their nature and character as per United States Department of Agriculture soil taxonomy. ओके तो ICAR ने जो क्लासिफिकेशन किया है USDA के बेस पे वो है ऐसे: इंसेप्टिसोल, देन एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिड सोल ये आपको डेजर्ट की सॉइल हो गई, अल्टीसोल, मॉलीसोल एंड अदर सॉइल्स. इनमें हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? 39.74%, अप्रॉक्सीमेटली 40% है इंसेप्टिसोल का. ओके. Now on the basis of genesis, color composition and location of the soil of India have been classified into 8 groups. ठीक है, जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन के हिसाब से इंडियन सॉइल्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ये 8 ग्रुप्स हैं आपके. फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल. Now first is the alluvial soil, most important soil of India. Why it is most important? You will see in the video. Alluvial soil is the largest. ठीक, first is the largest and most productive soil in India. Second reason is most productive soil in India. Okay, and it covers approximately 40% of total area of country. This is third important fact.
This is why, that is the reason why this alluvial soil is so important. Formed mainly due to silt deposited by Indo-Gangetic Brahmaputra rivers. जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो एलुवियल डिपॉजिट है वो मेनली सिल्ट डिपॉजिट है, किसका? इंडो-गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा रिवर्स का. एंड इन कोस्टल रीजन इट इज ड्यू टू वेव एक्शन. Learn this fact. This is very important fact that in coastal region, alluvial deposits are formed due to wave action. Okay. Now in peninsular region, they are found in deltas of east coast and in river valleys. Peninsular area में कहाँ पे alluvial soil मिलेगी आपको? Deltas of east coast and river valleys. They are called deltaic alluvium. Okay. Through a narrow corridor in Rajasthan, they extend into the plains of Gujarat and also found in Narmada and Tapi Valley. ये राजस्थान में नैरो बेल्ट में पाए जाते हैं और ये गुजरात प्लेन तक एक्सटेंड करती हैं एलुवियल सॉइल. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स? हम जितने भी सॉइल्स को डिस्कस करेंगे उनको मिली 3 हेडिंग्स हम देखेंगे. फर्स्ट है वेयर दे आर फाउंड, मतलब ये सॉइल कहाँ पाई जाती है. सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सॉइल. एंड थर्ड इज कल्टिवेशन, मीन्स वहाँ पर क्या प्रोडक्शन होता है. और इन्हीं तीनों टॉपिक्स को अगर आप किसी मेंस के एग्जाम में भी किसी का क्वेश्चन आपका मेंस में आते हैं उसमें भी आप इसको डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है लगभग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल. न्यू एलुवियम आर कॉल्ड खादर. ओके, खादर. खादर आपको वर्ड सुन के लग रहा होगा ये किससे बना है? खाद से. खाद मीन्स फर्टिलाइजर. मीन्स न्यू एलुवियम सॉइल आर वेरी फर्टाइल. ठीक है. एंड ओल्ड एलुवियम सॉइल आर कॉल्ड बांगर. टेक्सचर कैसा होता है? वेरी नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले. सैंडी लोम से क्ले तक वेरी करता है. और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है. सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द कंट्री. जो इसका सैंड कंटेंट होता है एलुवियल सॉइल का वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्रीज करता है. वेस्ट में सैंड रहेगा, देन उसके बाद सिल्ट आएगा, देन क्ले आएगा. नाउ कलर. इट्स कलर vary from light gray to ashy gray and its shades depend on the depth of the deposition, texture of the material and time for attaining the maturity. तो इसका कलर किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, टेक्सचर ऑफ द मटेरियल एंड टाइम फॉर अटेनिंग मेच्योरिटी. इन तीनों चीज पर इसका कलर डिपेंड करता है. एंड प्रोफाइल इज इमेच्योर एंड वेरी वीक. इसका प्रोफाइल अभी इमेच्योर है. रीजन क्या है? ड्यू टू रिसेंट ऑरिजिन. प्रोफाइल इसका अभी इमेच्योर है ड्यू टू रिसेंट ऑरिजिन. ये सॉइल कभी हाल में बनी है इसलिए इमेच्योर है ये. पेबल्स, ग्रेवल्स एंड कंकर बेड्स आर फाउंड इन दीज सॉइल्स. कंकर बेड आपका नीचे पाया जाता है. ये जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये कंकर बेड जो है ये सॉइल के थोड़ा डेप्थ में पाया जाता है. द सॉइल इज पोरस बिकॉज ऑफ इट्स लोमी नेचर. सॉइल पोरस होती है क्यों? लोमी नेचर के कारण. लोमी मीन्स इट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. पोरोसिटी एंड टेक्सचर प्रोवाइड गुड ड्रेनेज एंड अदर कंडीशन फेवरेबल फॉर बम्पर एग्रीकल्चर. जो इसकी पोरोसिटी और टेक्सचर होता है इसकी वजह से इसका ड्रेनेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है. मीन्स पानी यहाँ रुकता नहीं है. ठीक है. एंड अदर फेवरेबल कंडीशंस आर responsible for the bumper agriculture production, constantly replenished by floods. ये हर साल सॉइल ये रिप्लेनिश होती है फ्लड के द्वारा. ओके. नाउ इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं. दे आर रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड अल्कलीज. ये किस में रिच होता है? पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड अल्कलीज में. एंड देयर आर प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन इन सम एरियाज. तो ये फॉस्फोरस और पोटास और फॉस्फोरिक एसिड में और एल्कली में रिच रहता है. डेफिशिएंट किस में है? वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. ये नाइट्रोजन और ह्यूमस में काफ़ी डेफिशिएंट होता है. एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है मेनली. हम देखते हैं अक्सर यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं? यूरिया. यूरिया मीन्स मेनली नाइट्रोजन. ओके. देन अब हम देखते हैं कि ये फैक्ट कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है. Alluvial soils are deficient in which nutrient? They are deficient in nitrogen and humus. Now cultivation. They are intensively cultivated. Intensive cultivation होता है यहाँ पे. Best suited to irrigation. Irrigation के लिए best suited होता है
क्यों? जस्ट हमने ऊपर देखा था, पोरोसिटी एंड टेक्सचर, और पोरोसिटी एंड टेक्सचर की वजह से क्या होता है इसका? गुड ड्रेनेज। ओके, और यहाँ पर कल्टीवेट क्या क्या होता है? वीट, राइस, मेज, सुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, जूट एंड फ्रूट्स। मतलब मीन्स मैक्सिमम कल्टीवेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पर हर चीज उगाई जा सकती है इस एलुवियल सॉइल में। नाउ जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम जियोलॉजिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द भाबर। ओके, व्हाट इज भाबर? बेल्ट रनिंग अलोंग शिवालिक फुटहिल्स फाउंड बाय एलुवियल फैंस। सी व्हेन रिवर्स come down to from the Himalaya to the plain area, okay, they bring big size boulders, और ये जब boulders जब नीचे आते हैं प्लेन एरिया में, जस्ट जहाँ पर प्लेन एरिया स्टार्ट होता है वहीं पे रिवर्स क्या करती हैं? इन boulders को डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं, छोड़ना शुरू, क्योंकि हैवी होते हैं। आपका जो रिवर्स की जो स्पीड थी या जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो काफ़ी डिक्रीज हो चुकी होती है, इसलिए धीरे धीरे अपने वो लोड को यहीं छोड़ती जाती हैं जो हैवी लोड होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर boulders डिपॉजिट हो जाते हैं और वो एलुवियल फैंस का फॉर्मेशन करते हैं। Okay, and these alluvial fans join together to form the Bhabar belt. Now porosity of Bhabar is the most unique feature due to which pebbles and rock debris, जो पोरोसिटी है भाबर की वो सबसे यूनिक फीचर है, और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर पेबल्स और रॉक डेब्रीज पाई जाती हैं। जब बड़े बड़े पत्थर वहाँ डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पोरोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि पत्थरों के बीच में जगह बहुत होती है, और उसी की वजह से वो काफ़ी पोरस होता है। और इस पोरोसिटी की वजह से होता क्या है? स्ट्रीम्स डिसअपियर वंस दे रीच द भाबर रीजन बिकॉज ऑफ दिस पोरोसिटी। जो ऊपर से छोटी छोटी नदियाँ आती हैं वो यहीं पर डिसअपियर हो जाती हैं इसी एरिया में। डिसअपियर मतलब ऐसा नहीं कि वो सूख गई, वो इन पत्थरों के नीचे से बहना शुरू कर देती हैं। सो दे आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ओनली बिग ट्रीज विथ लार्ज रूट्स आर फाउंड हियर। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं तो यहाँ पर फसल कौन सी होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं। नाउ सेकंड इज तराई एरिया। सेकंड इज तराई। व्हाट इज तराई? इट इज पुअर ड्रेन्ड, मार्शी एंड थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक्ट टू द साउथ ऑफ भाबर। भाबर के जस्ट साउथ में तराई बेल्ट पाई जाती है। मेनली ये मार्शी एरिया होती है, दलदली भूमि होती है। ठीक है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ भाबर बेल्ट री इमर्ज। व्हाट हैपेंस हियर इज द स्ट्रीम्स विच हैव डिसअपियर्ड इन द Bhabar region re-emerge in this area. Underground streams of the Bhabar belt re-emerge here, and these tarai soils are rich in nitrogen and organic matter. तो हमने जस्ट अभी देखा था कि एलुवियल सॉइल्स में पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर डेफिशिएंट होता है, लेकिन जस्ट तराई में क्या है? उल्टा है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल में काफ़ी अच्छा होता है, एंड दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट। नाउ कल्टीवेशन suitable for crops such as wheat, rice, sugarcane, jute, etc. यहाँ wheat, rice, sugarcane, jute अक्सर काफ़ी अच्छा होता है। राइस के मामले में बासमती राइस उत्तराखंड का बहुत फेमस है। ओके, दिस थिकली फॉरेस्टेड प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ काफ़ी जंगल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत होती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विच आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच आर फाउंड इन this Tarai region. Now Bangar. Bangar is a older alluvium higher than the flood plains. Bangar क्या होती है? older alluvium होती है जो flood plains के ऊपर पाई जाती है। flood plains जहाँ तक मतलब बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसको flood plain कहते हैं, और उसके ऊपर पाई जाती है approximately 30 मीटर above the flood normal flood plain. Okay, it is of more clay composition. इसमें clay composition ज़्यादा होता है। A few meter below the bed of lime nodules known as कंकड़। अब भाबर के कुछ मीटर नीचे कंकड़ की ये लाइम नोड्यूल्स की लेयर पाई जाती है। कंकड़ मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ खादर एंड बांगर सॉइल्स कंटेन कैलकेरियस कंक्रीशन। तो ये जो कैलकेरियस कंक्रीशन होता है वो खादर में भी पाया जाता है और बांगर में भी पाया जाता है। नाउ फोर्थ इज खादर। इट इज न्यू एलुवियम फाउंड इन फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स। ये फ्लड प्लेन से पाई जाती है, न्यू एलुवियम होती है। ठीक है। फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल यहाँ बाढ़ आती है, एंड इस बाढ़ आने की वजह से क्या होता है? फॉर डिपोजिशन ऑफ न्यू लेयर ऑफ फाइन सिल्ट। इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ गंगा। ये गंगा की सबसे फर्टाइल सॉइल है।
दे आर सैंडी क्ले टू लोम, इनका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी क्ले से लोम तक होता है। ओके, डॉक्टर कलाम सर ने कहा था, यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, और श्योरली यही हैबिट्स आपके फ्यूचर को चेंज करेंगी। ओके, नाउ सी वेयर these alluvial soils are found. See, this is the location of alluvial soil. This green color, this is location of alluvial soil. Here to the West Bengal and now in the Assam region. And here in the coastal area, green color. These are alluvial soils. A black soil. Black soil found in Deccan Plateau and Malwa Plateau. This fact has asked many times in exams that which type of soil is found in Malwa Plateau. So in Malwa Plateau, black soils are formed. This includes the a part of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh, and some parts of Tamil Nadu. These are regions of high temperature and low rainfall. So which type of climates are found in area of black soil? High temperature and low rainfall. It's cover almost 16.6% of total area of country. The black soil is very deep in northwestern part of Deccan Plateau. ये फैक्ट कई बार एग्जाम में दिया जाता है, ट्रू और फॉल्स में भी। या सेलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। पैरेंट मटेरियल क्या है ब्लैक सॉइल का? पैरेंट मटेरियल इज दिस ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेटू। ये बेसाल्टिक लावा के वेदरिंग से फॉर्मेशन हुआ है ब्लैक सॉइल का, जो कि डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। ठीक है, देन ये फैक्ट जो आपका है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा पैरेंट मटेरियल के बारे में। इन तमिलनाडु निस एंड चिस्ट फॉर्म द पैरेंट मटेरियल। तमिलनाडु में जो है निस और चिस्ट इसके पैरेंट मटेरियल होते हैं। व्हाट आर निस एंड चिस्ट? दे आर एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स। Characteristics of black soil. The black soil are generally clayey, deep and impermeable. परमिबिलिटी इनकी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नील के बराबर होती है, काफ़ी कम परमिबिलिटी होती है। नील तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी कम परमिबिलिटी होती है, ऑलमोस्ट impermeable. It swell and become sticky when wet and shrink during when dried. ये जब गीली होती है तो स्वेल कर जाती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फूल जाती है और स्टिकी चिपचिपी हो जाती है, पर जब ये ड्राई होती है तो श्रिंक कर जाती है। So during dry season, the moisture evaporate, soil shrink and deep cracks develop. और इसमें गर्मी के मौसम में जब मॉइस्चर अपर लेयर से इवापोरेट हो जाता है तो सॉइल श्रिंक करके इसमें बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं, दरारें डेवलप हो जाती हैं। दिस क्रैक्स परमिट ऑक्सीजनेशन। और इन दरारों से फ़ायदा क्या होता है? ये ऑक्सीजनेशन परमिट करती है, यानी उन दरारों से ऑक्सीजन काफ़ी नीचे तक सॉइल में चली जाती है ऑफ द सॉइल। सो सॉइल बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टाइल। ओके, soil becomes extraordinary fertility. Thus there occur a kind of self plowing. तो इसमें एक तरह से सेल्फ प्लाउइंग मतलब ये अपने आप एक तरह से जुताई हो जाती है। वो होता कैसे है कि जब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो अपर सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो टूट टूट के क्रैक्स के अंदर गिरते रहते हैं, तो एक तरह से सॉइल पूरी रोटेट हो जाती है, अपर सॉइल नीचे चली जाती है, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है धीरे धीरे। ठीक, द लोअर लेयर कैन स्टिल रिमेन मॉइस्चर। और अपर लेयर से तो मॉइस्चर निकल गया, लेकिन लोअर लेयर में अभी भी इसमें मॉइस्चर रहता है। Because of this character of slow absorption of and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a very long time, which helps the crop, especially the rain-fed ones, to sustain even during dry season. इसके इसी कैरेक्टर की वजह से मीन्स स्लो एब्जॉर्प्शन, पानी का धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, इसका मॉइस्चर का जो लॉस है वो भी काफ़ी स्लो रहता है। द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मॉइस्चर को काफ़ी लंबे समय तक रिटेन की रहती है, विच हेल्प द क्रॉप स्पेशली ड्यूरिंग रेन फेड वंस। तो इसकी जब ये काफ़ी जब मॉइस्चर को होल्ड की रहती है तो ड्राई सीजन फ़ायदा क्या होगा कि मॉइस्चर इसमें काफ़ी अभी है, तो ये वहाँ के एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। तो इसमें जो क्रॉप्स होती हैं स्पेशली जो रेन फेड वंस होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। ब्लैक सॉइल इज़ हाईली आर्गलेसियस। ब्लैक सॉइल काफ़ी आर्गलेसियस होती है। आर्गलेसियस मीन्स कंटेनिंग हाई क्ले।
with a large clay factor 62% or more. Chemical composition rich in lime, iron, magnesia, alumina and also contain potash. इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, अलुमिना और पोटाश पाया जाता है, जिसमें रिच होती है. और लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ये लैक करती है. दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस, इवन इन UPPCS. That black soil lacks what? It lacks phosphorus, nitrogen and organic matter. Color of the black soil. It is deep black to grey. इसका कलर deep black से ग्रे तक होता है. ऐसा क्यों होता है? Due to presence of titaniferous magnetite और iron and black constituent of the parent rock. Not due to humus. इसका जो black कलर होता है वो मेनली आपके जो डेक्कन रीजन है वहाँ पर टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, उसी की वजह से इसका कलर ब्लैक होता है. और तमिलनाडु में इसका जो ब्लैक कलर होता है वो मेनली पेरेंट रॉक की वजह से होता है, जहाँ पर निस पाई जाती है. ओके, नॉट ड्यू टू ह्यूमस. इसका ब्लैक कलर ह्यूमस के कारण नहीं होता, इससे कंफ्यूज मत करिएगा. ये एग्जाम में कई बार UPSC में पूछा जा चुका है, तो इस कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका जो ब्लैक कलर ह्यूमस के कारण होता है. द ब्लैक सॉइल इज ब्लैक ड्यू टू Titaniferous magnetite, not due to humus. In Tamil Nadu and parts of Andhra, the black color is derived from crystalline schists and basic gneisses. जो तमिलनाडु में जो ब्लैक कलर की सॉइल पाई जाती है वो मेनली शिस्ट और निस की वजह से पाई जाती है. कल्टीवेशन बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन क्रॉप. कॉटन क्रॉप के लिए बेस्ट सूटेड है. हिंस दिस सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुर और black cotton soil. Okay, other major crops are wheat, linseed, Virginia tobacco. Tobacco भी इस एरिया में काफ़ी अच्छे पाया जाता है. जो आपका आंध्रा रीजन है वहाँ पे कैस्टर, सनफ्लावर भी बहुत अच्छा पाया जाता है इस ब्लैक सॉइल में. एंड मिलेट्स. राइस एंड शुगर केन आर इक्वली इंपॉर्टेंट वेर इरीगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल. जहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर राइस और शुगर केन काफ़ी अच्छा होता है. जैसे शुगर केन महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस है. One of the major producer of the sugar cane is Maharashtra. Suitable for dry farming. See in the map where the black soil is located. See, this is an area of black soil. Okay, and some parts here in Gujarat, black soils are found. Now red and yellow soil. ठीक है, रेड और येलो सॉइल देखते हैं हम. ये थर्ड इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया की. डेवलप ड्यू टू वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल. रेड सॉइल कहाँ डेवलप होती है? ये वेदरिंग के द्वारा डेवलप होती है. वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इन द लो रेनफॉल एरियाज इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. मेनली ये सदर्न और ईस्टर्न पार्ट जो डेक्कन प्लेटू का वहीं पर ये पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल. पैरेंट मटेरियल आर ग्रेनाइट, निस, क्वार्ट्जाइट. पैरेंट मटेरियल इसका ग्रेनाइट, नीट, ये मेनली आपका एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के पीडमोंट जोन मतलब जब वेस्टर्न घाट जहाँ पर बिल्कुल प्लेन एरिया से मैच करता है वहीं पर ये सॉइल पाई जाती है. पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन. दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ऑमनीबस ग्रुप. इस सॉइल को ऑमनीबस ग्रुप भी कहा जाता है. ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज इन ऑमनीबस ग्रुप? इट इज रेड एंड येलो सॉइल. इस फैक्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल. दे आर रेडिश इन कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन दैट इज फेरिक ऑक्साइड इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इसका जो रेडिश कलर होता है वो मेनली आयरन की वजह से होता है. आयरन को हमने देखा कभी जब जंग लग जाता है लोहे में तो वो रेडिश कलर का हो जाता है. इन द सेम वे रेडिश कलर इज ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन दैट इज फेरिक ऑक्साइड इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक. लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म. जब हाइड्रेटेड फॉर्म में रहती है तब ये येलो दिखती है. द फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल whereas the coarse grained soils found in the dry upland area are poor in fertility. जो फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, while द कोर्स ग्रेन जो होती है जो कि अपर एरियाज में पाई जाती है वो पुअर इन फर्टिलिटी होती है. नाउ द केमिकल कंपोजिशन, दे आर डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस. इसमें ये डेफिशिएंट होता है. किसमें? लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस.
एंड रिच इन पोटास एंड अल्कली, पोटास और अल्कली में रिच होती है, रेड एंड येलो सॉइल। नाउ कलर में जस्ट अभी डिस्कस कर लिया, रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, लोअर लेयर जो होती है रेडिश है, येलो कलर की होती है। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रेड एंड द होराइजन बिलो इज येलोइश। टेक्सचर सैंडी टू क्ले एंड लोमी। और कल्टीवेशन क्या होता है यहाँ पे, इन हायर पार्ट सुटेबल फॉर बाजरा, ग्राउंडनट, पोटैटोज, वेयर एज इन लो लाइंग एरियाज राइस, रागी, टोबैको एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। जो हायर पार्ट्स होते हैं जहाँ पानी कम हो रहता है वहाँ पे बाजरा, ग्राउंडनट, पोटैटो पाए जाते हैं, और लो लाइंग एरिया में राइस, रागी, टोबैको और वेजिटेबल्स पाए जाते हैं या उगती हैं। दिस सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, ओरचार्ड्स एंड पोटैटोज। ओरचार्ड मीन्स फलों के बगीचे, जैसे आपका आम के काफ़ी अच्छी फसल पाई जाती है इस एरिया में। तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ भी फलों के बगीचे मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया में रेड एंड येलो सॉइल में ओरचार्ड्स भी अच्छे पाए जाते हैं। नाउ सी द लोकेशन ऑफ रेड एंड येलो सॉइल एज यू सी इन द मैप, दिस इज रेड एंड येलो सॉइल, दिस एरिया इज ऑल्सो रेड एंड येलो सॉइल एंड ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सी दिस, okay, these are red and yellow soils. Now laterite soils, laterite has been derived from the Latin word later which means brick. laterite जो है लेटर से बना है, लेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंटें। The laterite soil develop in the areas of high temperature and heavy rainfall. See here, laterite soil is developed in the area of high temperature and heavy rainfall. यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, with alternate wet and dry period. लेकिन जो अल्टरनेट वेट और ड्राई का, ड्राइनेस का एक अल्टरनेशन रहेगा, मतलब पहले पता चला बारिश हो गई फिर सूखा हो गया, फिर बारिश फिर सूखा। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल इज हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। These are the result of intense leaching due to tropical rains. The formation of laterite soil is mainly due to leaching. These are result of intense leaching due to tropical rains. With rain, lime and silica are leached away. बारिश की वजह से क्या होता है, लाइम और सिलिका लीच्ड अवे हो जाते हैं, ओके। तो बचता क्या है ऊपर, सॉइल्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो जल्दी लीच नहीं होते वो ऊपर बच जाते हैं। सो ये लीचिंग हमने ब्रीफली काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। अगर आपको क्लियर ना हो तो उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। लेटराइट सॉइल जो है आपकी ये ब्रिक्स बनाने में यूज होती है, जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। दिस सॉइल्स आर मेनली डेवलप इन द हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू के हायर एरियाज जो हैं वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। These are found mainly in the hills of Western Ghat, Rajmahal Hills, Eastern Ghat, Satpura, Vindhyan, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, North Kachar Hills of Assam and Garo Hills of Meghalaya. यहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल मेनली ये हायर एरियाज में पाई जाती है। सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सॉइल मेनली डेवलप इन द हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जो हायर एरियाज वहाँ पर डेवलप होती है ये सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल, दे आर सॉफ्ट व्हेन दे आर वेट एंड हार्ड एंड क्लॉडी ऑन ड्राइंग। जब ये गीली रहती है तो काफ़ी सॉफ्ट रहती है सॉइल, लेकिन सूखने के बाद ये बहुत ही हार्ड और लंपी हो जाती है, लंप के रूप में हो जाती है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल ऑन इन हाई टेम्परेचर। इसका जो ह्यूमस कंटेंट होता है इस सॉइल का वो काफ़ी कम होता है। कम क्यों होता है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ बैक्टीरिया काफ़ी पाए जाते हैं और वो पूरा ह्यूमस को ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, एक तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। So humus content of the soil is removed fast by the bacteria. So they are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium. So this soil is poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium and rich in iron oxide and potash. आयरन ऑक्साइड रिच रहा है क्योंकि यहाँ लीचिंग हो चुका है, आयरन सिर्फ ऊपर बचा हुआ है, बाकी मेटेरियल्स के लीच आउट हो चुके हैं। कल्टीवेशन नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन सुटेबल नहीं है। Application of manures and fertilizers are required for making the soil fertile for cultivation of plantation crops. लेकिन हाँ, अगर आपने यहाँ पर फर्टिलाइजर अप्लाई किया है तो ये प्लांटेशन क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं, क्योंकि हिली एरिया पाई जाती है सॉइल।
So they are important for plantation crop like tea, coffee, rubber, coconut and cinchona. Whenever in examinations some question is given that which soil is suitable for plantation crop, it comes to be what? Laterite soil. Laterite soil in Tamil Nadu and Andhra Pradesh are and Kerala are more suitable for tree crops like cashew nut. जो तमिलनाडु, आंध्रा और केरला की लेटराइट सॉइल है वो कैशू नट के लिए काफ़ी फायदेमंद है और सुटेबल है उसके लिए. सी इन द मैप वेयर द लेटराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड. सी दिस इज एरिया ऑफ लेटराइट सॉइल ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. हियर यू कैन से वेस्टर्न घाट एरिया. हियर इन द उड़ीसा सम पार्ट्स. हियर इन द शेवरॉय हिल्स इन तमिलनाडु, इन अरावली रीजन and here in Garo hills, Garo Khasi Jaintia hills, around laterite soils are found. Now arid soils found in the arid and semi-arid regions in Rajasthan. Arid soil कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के arid और semi-arid areas में, and adjoining areas of पंजाब, हरियाणा, lying between Indus and Aravalli. पंजाब हरियाणा के वो एरिया जो इंडस और अरावली के बीच में लाई करते हैं, वहीं पर ये एरिड सॉइल पाई जाती है इंडिया में. रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. और इस एरिया में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है सालाना. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज एक्सटेंशन ऑफ दिस डेजर्ट. रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात का, वो इसी डेजर्ट का एक्सटेंशन है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल, कलर रेड टू ब्राउन, कलर इनका रेड टू ब्राउन होता है. सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर, सलाइन होती है नेचर में. सॉल्ट वाटर इज, सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई ऑब्टेन्ड बाय इवोपोरेटिंग सलाइन वाटर. इनका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एरिड सॉइल का. व्हाट इज द रीजन? इट इज़ बिकॉज ऑफ इवोपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सलाइन वाटर. व्हेन इवोपोरेट्स वाटर इवोपोरेट्स अवे, only salt remains in the soil. So salt content of this soil is very high. Due to dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. Dry climate, हाई टेम्परेचर और एक्सेलरेटेड इवोपोरेशन की वजह से इनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमस कंटेंट भी काफ़ी कम होता है. दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन काफ़ी कम होता है. बट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. नाइट्रोजन इनमें नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. रिच इन फॉस्फेट कंटेंट एज इन नॉर्मल अलुवियल सॉइल, और फॉस्फेट कंटेंट इनमें काफ़ी अच्छा होता है. तो दे आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, बट दे आर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स. So the presence of phosphate and nitrate make them fertile whenever moisture is available. तो जब भी कभी इस सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी अच्छा होता है या इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो जो ये फॉस्फेट और नाइट्रेट है, ये सॉइल्स को बहुत ही फर्टाइल बना देते हैं. लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर लेयर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड. और इसके लोअर होराइजन में कंकड़ पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है. कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे जब अब नीचे जाएंगे सॉइल में, तो कैल्शियम कार्बोनेट इंक्रीज करता जाता है. लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कंकर्स का. व्हाट इज द बेनिफिट? कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. इस कंकर लेयर की वजह से जो वाटर होता है वो नीचे लेयर में जा नहीं पाता. रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. सो सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल, द सॉइल मॉइस्चर इज इजीली अवेलेबल फॉर द सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ. तो जब भी कभी यहाँ पर अगर इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल रहता है और इरिगेशन की जाती है सॉइल की, तो वो पानी नीचे बहुत नहीं जा पाता और हमेशा प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल रहता है अपर लेयर में. कल्टीवेशन क्या होती है यहाँ पे? बार्ले, कॉटन, वीट, मिलेट, मेज एंड पल्सेस आर ग्रोन हियर. So this is arid soil. This is the location of arid soil. Saline soil. They are also known as ऊसर, कालर, थुर, रेह, कार्ड एंड चोपन. ये इसके लोकल नेम्स हैं. कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा इनके लोकल नेम्स को. इसको कहीं ऊसर भी कहा जाता है सलाइन सॉइल को. ऊसर मीन्स जहाँ पर जो बंजर टाइप में ज़मीन होती है उसको ऊसर भी कहते हैं. कालर, थुर, रेह, कार्ड एंड चोपन. दे ऑकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स. एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है. एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में तो आपकी एरिड सॉइल ही पाई जाती है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन भी है. दे ऑकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड वाटर लॉग्ड एंड स्वम्पी एरियाज. वाटर लॉग मतलब जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, ऐसे एरिया में सलाइन सॉइल पाई जाती है. इन वेस्टर्न गुजरात में आपको जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है उस साइड में,
डेल्टास ऑफ ईस्ट कोस्ट, सुंदरबन एरिया, ड्रायर पार्ट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टाज प्रमोट द ऑकरेंस ऑफ सलाइन सॉयल। जब डेल्टाज में सी वाटर इंक्लूड कर जाता है तो सलाइन सॉयल के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जैसा कि सुंदरबन डेल्टा में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइन सॉयल, स्ट्रक्चर इनका सैंडी से लोमी तक होता है। कंटेन लार्ज पोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। इनमें सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए सॉयल इनफर्टाइल होती है। दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। ड्रेनेज पुअर होता है, पानी बाहर निकल नहीं पाता, और ड्राई क्लाइमेट होता है। तो जब ड्राई क्लाइमेट होगा तो क्या होगा? पानी इवोपोरेट होगा उस एरिया से, मतलब उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी से या उस पर्टिकुलर लोकेशन से। तो जब वाटर इवोपोरेट हो जाए तो बचेगा क्या? सॉल्ट बचेगा। सो दे हैव मोर सॉल्ट्स। पुअर इन नाइट्रोजन कैल्शियम, नाइट्रोजन कैल्शियम में तो काफ़ी पुअर होती है ये। रिच इन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। रिच किस में होती है? ये अधिकता किसकी पाई जाती है? सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज इन एरियाज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन with excessive use of irrigation resulted in high subsoil water table and dry climatic conditions promote capillary action। जिन एरिया में ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल हुई वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी डेवलप की गई। तो इरिगेशन फैसिलिटी जब अच्छी डेवलप की गई तो क्या हुआ? एक्सेसिव इरिगेशन हुआ वहाँ पे, ठीक है, विच रिजल्टेड इन हाई सबसॉइल वाटर टेबल। तो सॉइल का जो वाटर टेबल था सब सॉइल का वो काफ़ी ऊपर आ गया, और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन थी वहाँ पे, इसलिए उसने कैपिलरी एक्शन को प्रमोट किया। सो व्हाट हैपेंस इन कैपिलरी एक्शन? सॉल्ट फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल comes to the upper layer, okay, so which resulted in the transportation and deposition of salt from the below to the top layer of the soil। the fertile soil are becoming saline। तो जब सॉल्ट नीचे लेयर से अपर लेयर में आ जाएगा कैपिलरी एक्शन के द्वारा, तो ऊपर की जो लेयर है वो एक तरह से सॉल्टी हो जाएगी और एक तरह से इनफर्टाइल हो जाएगी। सो फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स आर बिकमिंग सलाइन। तो ऐसी सलाइन सॉइल को ट्रीटमेंट के लिए फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है कि आप जिप्सम डालिए अपने खेतों में। फार्मर्स एडवाइज टू ऐड जिप्सम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। दिस फैक्ट हैज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशंस। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सलाइन सॉइल? इट इज जिप्सम। कल्टिवेशन क्या होता है यहाँ पर? राइस, सुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। राइस, सुगर केन, कॉटन एंड टोबैको आर कल्टिवेटेड इन दिस एरियाज। ओके, सलाइन सॉइल कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है मैप में, वो कि कुछ पैचेज में पाई जाती है। पीट एंड मार्शी सॉइल, they are found in the areas of heavy rainfall and high humidity where there is good growth of vegetation। ये कहाँ पाई जाती है पीट एंड मार्शी सॉइल? हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में, एंड वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जहाँ वेजिटेशन काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो जब वेजिटेशन अच्छी पाई जाएगी तो वहाँ पर पत्ते भी सूख के नीचे गिरेंगे तो सड़ेंगे, गलेंगे, और जो वहाँ पर पानी ज़्यादा है तो उसी में गलेंगे, सड़ेंगे वो, इसलिए वहाँ पर दलदली और मार्शी सॉइल पाई जाती है। It occurs widely in the northern part of Bihar, southern part of Uttarakhand, and coastal areas of West Bengal, Odisha, and Tamil Nadu। Now, characteristics of peat and marshy soil: due to large quantity of dead organic matter, rich in humus and organic content। यहाँ पर ऑर्गेनिक जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ड्यू टू डेड ऑर्गेनिक, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। तो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत पाया जाता है। सॉइल बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इन कोट्टायम एंड अलपुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इस ग्रुप की एक सॉइल जो कोट्टायम और अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है उसको हम कारी कहते हैं। दिस फैक्ट हैज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशंस दैट व्हाट इज कारी? इट इज सॉइल ग्रुप बिलोंगिंग टू पीट एंड मार्शी सॉइल विच इज फाउंड इन कोट्टायम एंड अलपुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। दे आर ब्लैक इन कलर, एट मेनी प्लेसेस दे आर अल्कलाइन। ये सॉइल ब्लैक कलर की होती है, तो इसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये ब्लैक सॉइल नहीं है। इसका ब्लैक कलर क्यों होता है? ड्यू टू ह्यूमस। ओके, इसका ब्लैक कलर क्यों होता है? ड्यू टू मोर ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। मेनली एसिडिक इन नेचर, ये ज़्यादातर एसिडिक होती है, क्योंकि पत्ते जब गिरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, गिरेंगे तो वो एसिड रिलीज करते हैं। सो दिस सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर। कल्टिवेशन से बहुत ज़्यादा कुछ खास तो होती नहीं है, लेकिन जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो इसको पैडी कल्टिवेशन के लिए इस सॉइल को यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर पैडी कल्टिवेशन। Now forest soil are found in the forest areas where sufficient rainfall is available। forest soil कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पर sufficient rainfall होती है, यानी कि जहाँ अच्छी बारिश होती है। characteristics of forest soil: structure and texture depend
ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर जो है वो डिपेंड करता है किस पे, माउंटेन इन्वायरमेंट पे, कैसा माउंटेन एरिया है। जैसे कि आपके हिमालयाज़ में जो सॉइल पाई जाती है वो डिफरेंट होती हैं और किससे, जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो माउंटेन पाई जाती हैं या जो पेनिनसुलर एरिया में जो सॉइल पाई जाती हैं। सो स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट एंड organic matter derived from the forest. Loamy and silty on valley sides and coarse grained in the upper slopes. ये जब वैली साइड में रहती हैं तो लोमी और सिल्टी हो जाती हैं, और जब अपर एरियाज में होती हैं फॉरेस्ट या माउंटेन के, वहाँ पर ये इनका कोर्स ग्रेन्ड होता है इन अपर स्लोप्स। एंड दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द स्नो बाउंडेड एरियाज ऑफ हिमालय दे एक्सपीरियंस ड्यूनेशन एंड एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट। जो हिमालयाज़ के जो स्नो बाउंडेड एरियाज़ हैं वहाँ पर दे एक्सपीरियंस ड्यूनेशन होता है इस सॉइल का, एंड आर एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट। यहाँ उनका ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये फैक्ट। ओके, दे आर लो इन ह्यूमस कंटेंट। द सॉइल फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल। नाउ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल्स, दे आर रिच इन ह्यूमस। ये सॉइल ह्यूमस में रिच होती है। ये फैक्ट आपको देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि लो ह्यूमस कंटेंट, यहाँ हम कह रहे हैं कि रिच इन ह्यूमस। रिच इन ह्यूमस मीन्स मेनली जो पेनिनसुलर एरियाज में जो माउंटेन्स होती हैं, जहाँ पर कि जो स्नो बाउंडेड एरिया नहीं होते हैं, वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा रहता है। ठीक है, बट जो जहाँ स्नो बाउंडेड एरिया है वहाँ ह्यूमस कंटेंट कम होता है। डेफिशिएंट इन पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम। पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम में ये डेफिशिएंट होते हैं। एंड व्हाट आर द कल्टिवेशन इन दिस एरियाज? प्लांटेशन क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। ये यहाँ की मेन कल्टीवेशन क्रॉप्स हैं। व्हाट आर टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड फ्रूट। ओके, सी इन द मैप, दिस इज द लोकेशन ऑफ forest soil. See, this area is of forest soil here in Darjeeling Hills, and here is the northern part of Arunachal Pradesh. ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लें, and subscribe the channel so that you don't miss the upcoming important videos. Thank you. Jai Hind.